Today we are going to discuss the chemistry chapter diuretics. Diuretics क्या होते हैं हमारे? Diuretics are the drugs which increase or rise the flow of urine. यो flow of urine को बढ़ाते हैं. So these are useful for the renal disorders. Kidney क्या है हमारा? These are responsible for the excretion of water, electrolytes or some non-electrolytes from the body. So balance between normal composition of blood, body fluid and acids, these all are maintained by kidney. So kidney is very important under certain conditions such as hepatic, renal or pulmonary disease, like in case of congestive heart failure. In congestive heart failure, salt or water is retained in body, so it will cause edema. So for the treatment of edema, we can use diuretics to promote the excretion of water or electrolytes from body through kidneys. So drugs which promote or rise the excretion of water or electrolytes from the body through kidneys, these are known as diuretics. So diuretics क्या होते हैं? These are valuable in treatment of edematous conditions, means edema, excess amount of water or fluid in the body. So these are useful in treatment of congestive heart failure, pulmonary edema and hypertension, means when rise BP. Also in treatment of drug overdoses, means excess amount of water in body, excess amount of drug in body or drug poisoning by eliminations through the kidney. So these are classified on the basis of their mechanism of actions. So there are different class in diuretics. First, water or osmotic agent. Second, acidifying drug, mercurial, sulfonamides, thiazide diuretics और miscellaneous. First one is osmotic, जिसमें आ जाएगा mannitol. So these are the substance which are poorly reabsorbed by renal tubules or present in higher concentration than electrolytes in body. So bring about elimination of water or electrolytes by osmotic pressures. So osmotic agents which act by osmotic pressure mechanism or remove excess amount of fluid or electrolytes from the body or poor reabsorption through the renal tubules. So drinking of large quantity of water result in rapid dilutions of blood, so increase its urinary excretions but no excretion of electrolytes. So certain non-electrolytes can be used as a osmotic diuretics. एग्जाम्पल लाइक मैनिटोल और यूरिया. यूरिया में क्या है? ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है. इसमें आता है स्ट्रक्चर में H2N C डबल बॉन्ड O NH2. ये क्या होता है हमारा? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस और मस्ट स्लाइड अमोनिकल ऑर्डर. जो ऑर्डर इसकी अमोनिया लाइक बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फ्रीली soluble in water but insoluble in chloroform. It must be stored in airtight container. So it's excellent diuretics but not absorbed by renal tubules, so excrete along with fluids. Means कि जो इसकी absorption नहीं होती renal tubules के थ्रू, नॉन टॉक्सिक होता है. नेक्स्ट आ गया हमारा मैनिटॉल. मैनिटॉल में क्या है? HOCH2 CHOH 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 CH2OH. ये भी होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, फ्रीली soluble in water और moderately soluble, means less soluble in alcohol. Also soluble in alkaline solution, that is also not metabolized in body, so filtered by glomerulus, that is a part of kidney, that is not reabsorbed or used as a diagnostic agent for kidney functions, means कि for used for diagnose purpose of kidney functions. So that can give an intravenous dose 200 mg per kg body weights that cause cellular dehydration or initiate osmotic diuresis. Means इसकी जो IV dose है 200 mg, that will cause cellular dehydration. Dehydration means loss of water, so initiate osmotic diuresis, so that can be sterilized by autoclave. So usual dose इसकी हम देंगे 50 to 100 ग्राम as per 25% solution. So large dose require osmotic diuretics that have been replaced by potent drug. So इसकी dose हम 50 to 100 ग्राम ही देंगे. नेक्स्ट हमारा है एसिडिफाइंग एजेंट्स. एसिडिफाइंग एजेंट्स
for example like ammonium chlorides, potassium nitrate, sodium acid phosphate that can produce diuretic effects, means increase or rise the flow of urine. So in body ammonium cations are covered into urea. So excess of anions like chlorine that are excreted. So along with excess of anion, sodium or hydrogen ions also eliminate, so leading to acidosis. So these compounds can potentiate the action of mercurial diuretics. So अमोनियम क्लोरीन टैबलेट्स यूजुअल डोज होती है इसके 4 ग्राम जो डेली यूज़ करते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट जो यूज़ होता है और एडमिनिस्टर्ड इन फॉर्म ऑफ इंटेरिकोटेड कैप्सूल्स लाइक 5 to 10 डेली. नेक्स्ट है हमारा मर्क्यूरल्स. मर्क्यूरल्स क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक मर्क्यूरल्स लाइक मर्क्यूरस क्लोराइड्स यूज्ड एज ए डायूरेटिक्स दैट गिव रैपिड इफेक्ट बट लेस साइड इफेक्ट. सो इनका मैकेनिज्म क्या है? ब्लॉकेज ऑफ सल्फा हाइड्रल ग्रुप. जो एंजाइम के ऊपर सल्फा हाइड्रल ग्रुप है उसको ब्लॉकेज करते हैं, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. मीन्स कि इसका फंक्शन क्या है कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए ग्रुप सल्फा हाइड्रल ग्रुप उसको ब्लॉक करके एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, डायूरेटिक एक्शन इज प्रोड्यूस्ड. सो व्हेन देयर एंजाइम्स इज ब्लॉक्ड, सो एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड्स इज प्रोड्यूस्ड. सो इसमें ड्रग्स आ जाती हैं मर्केप्टोमेरिल सोडियम. ये होता है वाइट मॉर्फस पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर अब्जॉर्ब, सोलुबल इन वाटर एंड कोल्ड, मे बी स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर्स. सो अदर ड्रग इज mercurophyllene, mercilline. These are comes under mercurial types drug. नेक्स्ट आ गया हमारा सल्फोनामाइड्स. सल्फोनामाइड्स एंड आल्सो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलाइन यूरिन. सो इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है. सो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इन कन्वर्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन. मीन्स जो एंजाइम जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन. सो इन renal tubules there is an exchange of hydrogen ion for sodium ion and sodium ion bicarbonate excrete into the urine. सो ये सल्फोनामाइड क्या करेगा? दैट इज़ इनहिबिट्स द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और सुप्रेस द हाइड्रोजन सोडियम आयन एक्सचेंज. मीन्स कि जो एंजाइम्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन उसके ऊपर ये एक्ट करेगा. सो इनहिबिशन मीन्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम वो है उसकी इनहिबिशन होगी जिससे हाइड्रोजन और सोडियम आयन एक्सचेंज जो है वो सुप्रेस होगा और एसिडोसिस होगा. So these can natriuretic excretion of cytinium ions or celluretic excretion of sodium or chloride ions. So these are the drugs comes under sulfonamides. इसमें आ जाएगा एसिटोजोलामाइड, डाइक्लोरोफिनामाइड, क्लोरोथैलिडोल. एसिटाजोलामाइड जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए और इन ग्लूकोमा मीन्स इंट्राक्यूलर टेंशन ऑफ आइस इंक्रीज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. इसकी डोज हम देंगे 250 mg डेली. डाइक्लोरोफिनामाइड ये भी होता है 4,5 डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 डाइसल्फोनामाइड्स. सो आल्सो यूजफुल इन फॉर्म ऑफ टैबलेट आल्सो इन ग्लूकोमा. क्लोरोथैलिडोन होता है 2-chloro-5,3 हाइड्रोक्सी ऑक्सो इंडोलिन बेंजीन सल्फोनामाइड्स. नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लूसामाइड. फ्लूसामाइड में आएगा 4-chloro N-furfural 5-sulfonyl एंथ्रेलिक एसिड्स. ये होता है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्रेलिक एसिड जो इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन. सोडियम आयन्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है थ्रू द किडनी उसको इनहिबिट करेगा. दैट इज़ आल्सो ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर, आल्सो प्रिजर्व इन एयर टाइट कंटेनर और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट. दैट इज़ इंपॉर्टेंट डायूरेटिक्स. सो यूजुअल डोज इसकी है 40 to 120 mg डेली. नेक्स्ट आ गया थायाजाइड और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड. इसमें है क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ड्रग्स यूज्ड एज ए डायूरेटिक्स. इसमें होता है थायाजाइड ग्रुप
सो इट आल्सो रिड्यूस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी, मीन्स कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स हैं जिससे रीअब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसको इनहिबिट करेंगे और इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स एक्सेस अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसको रिड्यूस करेंगे जिस और इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयंस। सो इस थायाजाइड में क्या है, क्लोरोथायाजाइड मीन्स कि क्लोरीन ग्रुप होगा और थायाजाइड रिंग होगी, हाइड्रो में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच और थायाजाइड रिंग। 6 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप, इसमें हाइड्रो ग्रुप, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड में हाइड्रो ग्रुप, और क्लोरोथायाजाइड है 6 क्लोरो 2 हाइड्रो 2 4 बेंजोथायाडाजीन 7 सल्फोनामाइड 1 1 डाइऑक्साइड, ये हो गया क्लोरोथायाजाइड। नेक्स्ट वन इज इट्स प्रॉपर्टी, इट्स ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर insoluble in ether and chloroform but soluble in alkalis. It also inhibit renal tubular reabsorption of sodium, means inhibit the reabsorption of electrolytes or increase their excretions, rapid onset of actions, also useful in treatment of congestive heart failure और hypertension. इसकी यूजुअल डोज है 250 mg 3 times in a day। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इसमें है 6 क्लोरो 3 4 डाईहाइड्रो 1 2 4 बेंजोथायाडाजीन 7 सल्फोनामाइड 1 1 डाइऑक्साइड। ये भी होता है इनसॉल्युबल इन वाटर बट स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल और इन एल्कलीज, आल्सो सिमिलर टू क्लोरोथायाजाइड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। इसकी यूजुअल डोज है 25 to 100 mg डेली। नेक्स्ट है बेंड्रोफ्लूजाइड, ये होता है 3 बेंजाइल 3 4 डाईहाइड्रो 6 ट्राईफ्लोरोमिथाइल 2 हाइड्रोजन 2 4 बेंजोथायाडाजीन 7 सल्फोनामाइड। ये भी होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये होता है मोर पोटेंट डायूरेटिक्स देन थायाजाइड, इसकी यूजुअल डोज होती है 2.5 to 10 mg। साइक्लोपेंटोथायाजाइड, ये होता है 6 क्लोरो 3 साइक्लोपेंटाइल मिथाइल 3 4 डाईहाइड्रो 1 2 3 बेंजोथायाडाजीन 7 सल्फोनामाइड। ये होता है वाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, यूजुअल डोज 250 to 600 माइक्रोग्राम। पॉलीथायाजाइड में होता है 6 क्लोरो 3 4 डाईहाइड्रो 2 मिथाइल 3 2 2 ट्राईफ्लोरोइथाइल 1 2 4 बेंजोथायाडाजीन 7 सल्फोनामाइड 1 1 डाइऑक्साइड। ये भी होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर insoluble in water and chloroform, also in the form of tablet, usual dose के 1 to 4 mg daily। सो नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड, ये होता है 3 4 डाईहाइड्रो 6 ट्राईफ्लोरोमिथाइल 2 बेंजोथायाडाजीन 7 सल्फोनामाइड 1 1 डाइऑक्साइड। ये होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर वाइट शाइनिंग क्रिस्टल्स सॉल्युबल इन अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इसके यूजुअल डोज है 25 to 100 mg। नेक्स्ट आ गया हमारा मिसलेनियस, मिसलेनियस में आ जाएगा स्पाइरोलेक्टोन, जो क्या है मिसलेनियस ड्रग है। इसमें आ जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कंट्रोल द इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी, मीन्स कि ये ऐसा हार्मोन्स है जो कि कंट्रोल करेगा किडनी में द अमाउंट ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर एक्सक्रीशंस थ्रू द किडनी। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन्स, मीन्स कि इसके एब्सेंस में इलेक्ट्रोल वाटर नॉट रीअब्सॉर्ब, सो वो क्या कंडीशंस हो गई, डायबिटिक इंसिपिडस। So in the blockage of these aldosterones that inhibit biosynthesis so result in diuresis। so इसके लिए हम ड्रग्स यूज़ करेंगे स्पाइरोलेक्टोन, ट्राईएमिपेटेरिन, अमीलोरेट्स एट्सेट्रा। फर्स्ट ड्रग इज स्पाइरोलेक्टोन, दैट इज क्रीमी वाइट पाउडर विद characteristics odor insoluble in water but soluble in alcohols, also protect from light। so it also increase the sodium ion excretion। so usual dose की है 100 to 40 mg 400 mg। नेक्स्ट है ट्राईएमिपेटेरिन, दैट इज 247 ट्राई अमीनो, मीन्स 247 पोजिशन पे अमीनो ग्रुप 6 फिनाइल पेटेरिडीन, दैट इज आल्सो ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर
It's a yellowish crystalline powder, springly soluble in water or less soluble in alcohol. Also inhibit aldosterone. So bring about excretion of sodium and chlorides in the form of capsule. Usual dose is 150 to 50 mg. नेक्स्ट है एमिलोरेट, इसमें है एन एमिडिनो 3,5 डाई एमिनो 6 क्लोरोपायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड हाइड्रोक्लोराइड. Pale yellowish greenish powder, springly soluble in water but less soluble in alcohol, also insoluble in chloroform. Mainly protect from light. User dose के 5 to 10 mg daily in the form of tablets. So site of action of trimetine and amilorate is in distal tubules to block reabsorption of sodium or increase excretion of sodium and chlorine in the urine. Next one is ethacrenic acid. ethacrenic क्या है हमारा? E2,3-dichloro 4,2-ethyl chloryl phenoxyacetic acid. So that is a derivative prepared from phenoxyacetic acid. So inhibits sulfur hydral enzymes. Ethacrenic acid क्या है? Mainly inhibits the sulfur hydral enzyme which is responsible for tubular reabsorption of sodium. So that is a white crystalline powder, springly soluble in water but freely soluble in alcohol or chloroform. Should be stored in airtight container. Usual dose क्या है? 50 to 200 mg. So extract of tea and coffee also exhibits the diuretic activity. So development of xanthin derivatives like aminophylline, theophylline, theobromines, ये सारी क्या है? शो करते हैं diuretics activity. Means rises the flow of urine. So that have been replaced clinically by some other potent drugs. Thank you.